Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 2 of your English Fairy book. Simon Says. Now students, before starting the chapter, those who have not subscribed my channel, kindly subscribe it so that you will get updates of my new videos. So let's start without wasting time. First there is warm up exercise given on page number 21. Look at these pictures. You can see pictures. आपको कुछ pictures दिख रही हैं. Discuss what these animals are doing. अब आपको discuss करना है ये animals क्या कर रहे हैं. How else do animals help us? और animals हमारी किस तरह से help करते हैं. So students, in first picture you can see dogs are pulling carts. Dogs cart को खींच रहे हैं कहाँ पर? Snow में. Then second picture you can see horse. Horse भी क्या चलाता है? कार्ट को खींचता है. Now then you can see camel. Camel is useful in desert area. Then you can see bulls. They help in farming in villages. Now and then reindeers you can see very helpful in snowy regions. So students, all these animals help us. Now let's start the chapter. Read the story about a guide dog named Simon. ये कहानी एक guide dog की है जिसका नाम है Simon. I begin to get the feeling that Christmas is around the corner when Ma starts making sweets and smell of burnt sugar and baking fills the house. मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि क्रिसमस आ गया है जब माँ मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है और शुगर के बर्न होने की और केक के बेक होने की खुशबू सारे घर में घूम जाती है. The countdown begins and every day there is some new activity going on. Countdown begins, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जब घर में कोई नई नई एक्टिविटी हर रोज होती है. Like the Christmas tree lights being checked out. जैसे क्रिसमस ट्री पे जो लाइट्स जलाते हैं उसको हम चेक करते हैं whether it is perfectly working or not. The wiring of the star to be fixed. स्टार्स हैंग करते हैं, उसकी वायरिंग फिक्स करते हैं. और द लास्ट मिनट चॉपिंग ऑफ द ड्राई फ्रूट्स टू बी डन. और आखिरी समय में ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग यानी कटिंग करते हैं. Then before we know what is happening, फिर उससे पहले कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, we start our rounds of carol singing. Carol singing, हम carols गाना शुरू कर देते हैं. Meeting old friends, पुराने दोस्तों से मिलना और making new ones, नए दोस्त बनाना. Oh, the entire month is fun. पूरा महीना fun, मजे का होता है. This year, इस साल however was different, थोड़ा अलग था. Early in the morning on the 1st of December my mother woke me up with awful news. पहली दिसंबर की सुबह सुबह माँ ने मुझे जल्दी उठाया एक बुरी खबर के साथ. I have to go to the hospital, Rita. रीटा, मुझे हॉस्पिटल जाना है. She said worriedly. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा. Why? I asked. मैंने पूछा क्यों. Grandpa had a terrible accident. Grandpa का एक्सीडेंट हो गया है. Grandpa is my favorite person in the world after my friend Latika. Grandpa मेरे फेवरेट पर्सन है, सबसे पसंदीदा व्यक्ति है मेरी दोस्त लतिका के बाद. I can tell him anything. मैं उन्हें कुछ भी बता सकती हूँ. Even grumble when I think Ma is being unfair to me. Even जब माँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तब मैं माँ की कंप्लेन भी कर सकती हूँ. He always listens and gives me his fullest attention like I am an adult. वो मेरी बात सुनते हैं और बहुत ध्यान देते हैं जैसे कि कोई बड़ा बात कर रहा हो. Simon does too, but that is different. Simon भी ध्यान से सुनता है बट वो अलग है. When Grandpa began to lose his eyesight some years ago, कुछ साल पहले जब ग्रैंडपा की आंखों की रोशनी कम होने लगी, he got himself a guide dog. वो अपने लिए एक गाइड डॉग ले आए.
गाइड डॉग मीन्स जो उनका पथ प्रदर्शन करे, उन्हें कहाँ जाना है उन्हें गाइड करे। अ ट्रेन्ड जर्मन शेफर्ड, वो डॉग एक ट्रेन्ड जर्मन शेफर्ड था। एंड कॉल्ड हिम साइमन, और उसे उन्होंने साइमन बुलाना शुरू कर दिया। बिकॉज आई हैव टू डू वॉट साइमन सेज, ही टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही चोज साइमन। जब मैंने पूछा कि आपने इस डॉग का नाम साइमन क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि जो साइमन कहता है वो मुझे करना है। बिकॉज ऑफ साइमन, साइमन की वजह से ग्रैंडपा कुड कंटिन्यू टू लिव ऑन हिज ओन, ग्रैंडपा अपने आप पर आत्मनिर्भर होकर रहना शुरू कर सके। ही कुड गो फॉर वॉक्स, वो वॉक पर जा सकते थे। एंड इवन डू सम शॉपिंग, और कुछ खरीदारी भी कर सकते थे। नाउ एंड देन व्हेन ही वांटेड टू सरप्राइज अस विद गिफ्ट्स, जब वो हमें कोई तोहफा दे के सरप्राइज करना चाहते थे तो वो साइमन के साथ जाकर शॉपिंग भी कर सकते थे। साइमन लेड ग्रैंडपा स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ अ कार एंड ही वाज बैडली इंजर्ड, साइमन उन्हें कार के रास्ते में सीधा ले गया और उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी। माई मदर सेड दैट इवनिंग, माँ ने उस शाम को कहा। He was awake when I went, but he just kept calling out Simon's name. मैं जब वहां गई तब वो जगे हुए थे, लेकिन वो साइमन का नाम बार बार बुला रहे थे। माँ had brought Simon back to our place, but he just mopped around the house. माँ साइमन को हॉस्पिटल से वापस घर ले आई थी, लेकिन वो दुखी होकर सारे घर में घूम रहा था। बेयरली ईटिंग और ड्रिंकिंग, और कुछ खा भी नहीं रहा था ना कुछ पी रहा था। इट वॉज एज इफ ही न्यू ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंडपास कंडीशन, जैसे कि वो जानता हो कि ग्रैंडपा की इस हालत के लिए वो ही जिम्मेदार है। That night Simon didn't sleep at all, और उस रात साइमन बिल्कुल नहीं सो सका। And after that he just got worse, और उसके बाद उसकी हालत और भी बुरी हो गई। I took him out for walks, talked to him and told him we are praying for grandpa's recovery. मैं उसे बाहर वॉक कराने ले गई और उससे बात भी की कि ग्रैंडपा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। इट वॉज अ कपल ऑफ डेज लेटर, 2 दिन के बाद, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, दैट आई मेड द डिस्कवरी। 2 दिन के बाद जब मैं स्कूल से वापस घर आई, मैंने कुछ पता लगाया। साइमन वॉज सिटिंग ऑन द पोर्च इन फ्रंट ऑफ द मेश डोर, बट ही डिडंट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ रिक्शा व्हेन आई गॉट होम। जब मैं रिक्शे से वापस आई, मेरे आने की आहट पर साइमन ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि वो जाली के दरवाजे के सामने बरामदे में बैठा हुआ था। He did not reply to me, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। When I called out to him, जब मैंने उसे बुलाया। He just continued to stare straight ahead at Ma, who was in the kitchen. वो सीधे माँ को देखे जा रहा था जो रसोई में थी। Simon, Simon, I called loudly. मैंने जोर से बुलाया, Simon, Simon. Finally he turned his head, stood up and trotted towards me wagging his tail. A big doggy smile on his face. उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। He is deaf, Ma, I said when I walked into the kitchen. वो बहरा हो गया है माँ, जब मैं रसोई में आई मैंने माँ को बताया। That was why he led Grandpa into the path of that vehicle. इसीलिए वो उस गाड़ी के रास्ते पर ग्रैंडपा को ले गया। He couldn't hear it approaching. गाड़ी के पास आने की आवाज वो नहीं सुन सका। माँ stopped cooking and thought for a minute. माँ ने खाना पकाना छोड़कर कुछ मिनट के लिए सोचा। He must be almost 10 years old now. ये अब लगभग 10 साल का हो चुका है। She said, wiping her hands on a cloth. अपने हाथों को कपड़े से पोंछते हुए उन्होंने कहा, So it's possible his hearing is going. तो ये पॉसिबल है, संभव है कि उसकी सुनने की शक्ति जा रही है। Simon still wasn't eating, and the next morning when I took him for a walk, his legs gave way and he sat down heavily on the grass.
साइमन अभी भी कुछ नहीं खा रहा था और जब मैं उसे नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक करने के लिए ले गई, उसका पैर मुड़ गया और वो घास पर बैठ गया। माँ माँ, आई शाउटेड एज आई ट्राइड टू लिफ्ट हिम अप। माँ माँ, मैं चिल्लाई जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की। कम क्विक, साइमन कांट वॉक। जल्दी बाहर आओ, साइमन चल नहीं सकता। माँ हेल्प्ड मी पिक साइमन अप। माँ ने मुझे साइमन को उठाने में मदद की। एंड वी टुक हिम टू द वेट, और हम उसे वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड वॉज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, सो ही वॉज पुट ऑन अ ड्रिप इमीडिएटली। साइमन को बुखार था और उसके शरीर में पानी की कमी हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे जल्द ही ड्रिप लगा दी। I stayed with him until he was settled. मैं उसके पास ही रही जब तक वो ठीक नहीं हुआ। And for the next few days spent as much time as I could with him as he fought for his life. और फिर अगले कुछ दिनों तक मैं जितना ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकती थी मैंने बिताया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। It was a week before I could visit grandpa again. लगभग एक हफ्ता हो चुका था जब मैं दोबारा ग्रैंडपा के पास जा सकी। He looked so frail and weak and was bandaged all over. वो बहुत कमजोर दिख रहे थे और उनके शरीर पर सब तरफ पट्टियां बंधी हुई थीं। He looked at me as I held his hand and whispered. उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो फुसफुसाए, गेट मी आउट ऑफ हियर, हाउ इज साइमन, मुझे यहाँ से ले चलो। हाउ इज साइमन, साइमन कैसा है। आई फाउंड इट हार्ड टू स्पीक अबाउट साइमन बट ही सीम टू रीड माई माइंड। मुझे साइमन के बारे में बताते हुए कष्ट हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, लेकिन ग्रैंडपा मेरे दिमाग को पढ़ चुके थे। It will do him good to meet me. अगर मैं उससे मिलूं तो उसके लिए अच्छा होगा। He must feel like I have deserted him. उसे लग रहा होगा कि मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। Then Grandpa told me how much he longed to be home, how he hated being in the hospital. और फिर ग्रैंडपा ने बताया कि वो कितना जल्दी घर आना चाहते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में रहने से घृणा हो रही है। It took Ma 2 weeks to convince the doctors to let Grandpa come home with us. और माँ को डॉक्टर को मनाने में 2 हफ्ते लगे कि वो ग्रैंडपा को हमारे साथ घर आने दें। By then Simon was back at home. और तब तक साइमन घर आ चुका था। When he realized that Grandpa was back too, Simon rose shakily to his feet and began to bark. जब उसको ये पता लगा कि ग्रैंडपा घर आ चुके हैं, साइमन जल्दी से उनके पैरों पर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। Almost trying to dance around, getting under our feet as we helped Grandpa into a chair. ऑलमोस्ट वो लगभग डांस कर रहा था और हमारे पैरों के नीचे से जा रहा था और हम क्या कर रहे थे, हम ग्रैंडपा को चेयर पर बैठने में हेल्प कर रहे थे। द अटेंडेंट हु ब्रॉट ग्रैंडपा फ्रॉम द हॉस्पिटल टोल्ड मी, वो अटेंडेंट जो ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से घर लाया था उसने बताया, कीप द डॉग अवे, इस डॉग को दूर रखो। He will jump on the old man and hurt him. ये ओल्ड मैन पर, इन बूढ़े आदमी पर जंप करेगा और इन्हें चोट पहुंचा सकता है। But Grandpa put up his hand and said hoarsely. ग्रैंडपा ने अपना हाथ उठाया और बड़ी अजीब सी आवाज में कहा, Simon is too smart to do that. साइमन ये करने के लिए बहुत स्मार्ट है, बहुत अक्लमंद है। There were only a few days left before Christmas. क्रिसमस के लिए अब कुछ ही दिन बचे थे। एंड वी हैड टू लुक आफ्टर 2 पेशेंट्स इन द हाउस, और हमें घर में 2 पेशेंट्स की, 2 बीमारों की देखभाल करनी थी। नाउ एज वी फिनिश्ड आवर प्रिपरेशंस, अब जैसे कि हमने अपनी क्रिसमस की सारी तैयारियां खत्म कर ली थी। बट एज द डेज पास्ड, लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, बोथ मेड अ स्लो स्टडी रिकवरी, दोनों ने ही धीरे धीरे किंतु
रिकवरी कर ली, वो ठीक हो गए। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, आई फाउंड ग्रैंडपा क्लिकिंग ऑफ हिज मोबाइल फोन, मैंने पाया कि ग्रैंडपा अपने मोबाइल फोन से कुछ क्लिक कर रहे थे। आई थॉट वी वर पाल्स, मैंने सोचा हम तो दोस्त हैं। वाई डिडंट यू टेल मी हाउ इल साइमन वॉज, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साइमन कितना बीमार था। ग्रैंडपा हैड ऑब्वियसली बीन चेकिंग विद द वेट एज वेल एज टॉकिंग टू माँ, ग्रैंडपा डॉक्टर से, वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे और साथ ही साथ माँ से बात भी कर रहे थे। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। The next morning, after picking up the presents from below the hastily decorated Christmas tree, अगली सुबह जो डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री था वहां से मैंने सारे प्रेजेंट, सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए। आई फाउंड ग्रैंडपास बेड एम्प्टी, और मैंने पता लगाया कि ग्रैंडपा का बेड खाली था, मीन्स ग्रैंडपा अपने बेड पर नहीं थे। एंड साइमन नोवेयर इन द साइट, और साइमन भी कहीं नहीं दिख रहा था। I was rushing out of the room to inform माँ, मैं जल्दी से रूम से बाहर भागी माँ को बताने के लिए। When grandpa walked in unsteadily from the veranda led by Simon, जब grandpa वरांदा से चलकर जा रहे थे और आगे उनके कौन था, उनके आगे साइमन था। Grandpa, you are able to walk again, I exclaimed. How did you do it? ग्रैंडपा, अब आप फिर से चल सकते हैं, मैंने खुश होकर कहा, आपने ये कैसे किया। आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन, मुझे साइमन के लिए फिर से खुद को मजबूत करना था, ताकतवर बनाना था। साइमन सेज ही इज नॉट रेडी टू गो येट, और साइमन कहता है कि वो अभी भी चलने के लिए तैयार नहीं है। Grandpa, you are playing, Simon says again. I said happily. मैंने खुश होकर कहा, ग्रैंडपा आप फिर से खेल रहे हैं। साइमन सेज, साइमन सेज मीन्स जो साइमन कहता है वो मैं करूंगा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ ग्रैंडपा and a girl and about Christmas. This was adopted from a short story by the same name by Cheryl Rao. So students, that's all for today. In my next video, we will do question answers and exercises of this chapter. I hope you like my way of teaching. If you like it, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.